Animals are living things that need food to grow and air to breathe. They reproduce by giving birth to their young ones or laying eggs. Characteristics of animal. Or Now, laying eggs. characteristics means a quality or features. Okay. Okay. Yes. Characteristics of animals. Characteristics of animals. Okay. Read it. Characteristics of animals. Animals need food to stay alive. It gives them energy. Animals have sense organs to feel different things around them. Animals use different types of organs for breathing. All animals reproduce. Most of the animals have tails. Niharika, They wait. use Niharika, they, wait 1 minute. Wait. So now, good morning to all of you. Okay, बेटा switch off your mic, all of you. एक बार आप माइक ऑफ कर लो, सिर्फ निहारिका का ऑन रहेगा. ओके, बाकी सारे बच्चे अपना माइक ऑफ कर लेंगे. सो वी हैड डन टिल हियर, है ना. हमने ये चैप्टर जो है एनिमल्स, मैंने आपको ये यहाँ तक समझा दिया था. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स वी हैड डन, बट वन मोर टाइम वी विल डू द रिवीजन. ओके बेटा, ये कौन है जो माइक ऑफ नहीं कर रहा है? प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, ऑल ऑफ यू. So we see various type of animals around us. Animals are living things that need food to grow and air to breathe. यानी कि जो भी एनिमल्स हैं, क्या है, एक तो बहुत सारे टाइप के एनिमल्स हैं. ओके, और सारे एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग होते हैं, यानी कि उनमें लाइव होती है, वो जिंदा होते हैं, वो ग्रो होते हैं, तो उन्हें फूड और एयर की जरूरत होती है. यस, तो जो भी लिविंग थिंग्स है, नीड फूड टू ग्रो एंड एयर टू ब्रीथ. ओके, they reproduce by giving birth to their young ones and yes. Ma'am. Who's there? First tell me your name. Who's there? What happened, beta? Any problem is there? Yes. Now listen carefully. Okay. So they reproduce. What is reproduce? यानी कि अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देना, उसे कहते हैं reproduce. Okay. So they reproduce और प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. कि उनके छोटे बच्चे जो होते. बेटा आप बोलते ही नहीं हो, कौन? आप अपना नाम बताओ पहले तो मुझे. मैम मैम कर रहे हो. व्हाट हैपेंड? हु इज देयर? फर्स्ट टेल मी योर नेम. बेटा टेल मी योर नेम. So they reproduce by giving birth to their young ones or laying eggs. Okay. Beta, who's there? Tell me your name. Who is saying ma'am, ma'am again and again? Show me your face. Who's there? Yes? What happened, beta? Any problem is there? Ask me. Ask me what happened? Who's there? No one is there? टाटा कर दे. टाटा कर दे. टाटा कर. बेटा माइक ऑफ करो सब लोग. All of you switch off your mic. Let me explain. Okay? Let me explain. Let me explain, all of you. No problem is there? Yes? Beta, switch off your mic, all of you. Switch off your mic, all of you. If you're having problem, then you give me hand raise reaction. Okay? Chalo, start. So we see various type of animals around us. Animals are living things that need food to grow and air to breathe. Okay? Animals are living things. Beta, switch off your mic. Please, I request you all. Suraj, mic off karo. Beta, switch off your mic. Please, I request you. All students, listen carefully. So in previous class I had explained you characteristics of animals. Means animals जो होते हैं उनकी क्या qualities होती है या उनकी क्या features होती है. Okay, so animals need food to stay alive.
इट गिव्स देम एनर्जी। ओके, यानी कि जो भी फूड एनिमल्स खाते हैं उनसे क्या होता है, उन्हें एनर्जी मिलती है और वो ग्रो भी होते हैं। ओके, people have sense organs to feel different things around them। जैसे कि हम कोई भी चीज को सेंस कर सकते हैं, जैसे हमें कोई आवाज आती है तो हम सुन के खड़े हो जाते हैं या अलर्ट हो जाते हैं, या हम किसी गर्म चीज को टच कर लेते हैं तो हम हाथ अपना पीछे ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में भी सेंस ऑर्गन्स हैं। तो वैसे ही आप देख सकते हो कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं टू फील डिफरेंट थिंग्स अराउंड देम, यानी कि उनके आसपास क्या चल रहा है ये फील करने के लिए जो भगवान है उन्होंने उन्हें भी सेंस ऑर्गन्स दिए हैं जैसे कि हमारे हैं, है ना। एनिमल्स यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। तो जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स यूज करते हैं फॉर ब्रीदिंग, जैसे कि हम यूज करते हैं, है ना। हम भी अपनी लंग से, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से ब्रीथ करते हैं, वैसे ही एनिमल्स जो है जो वाटर में होते हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से यूज करते हैं ब्रीदिंग को, और जो लैंड पे रहते हैं या जो एयर में रहते हैं वो भी अपनी जो ब्रीदिंग टाइप है उनके ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंड पाइप और लंग्स, इस टाइप से। ओके, ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस, यानी कि सारे ही एनिमल्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करना यानी कि उनके जैसे ही बच्चे को जन्म देना। ओके, तो दो टाइप से होता है, या तो एनिमल्स क्या करते हैं, एग ले करते हैं। ओके, या तो वो अंडे देते हैं या फिर वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं बच्चों को। ठीक है, लेकिन जितने भी एनिमल्स हैं हमारे इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे, वो सब रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव टेल्स, यानी कि अब आप एक क्वेश्चन भी था मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, तो ये ज्यादातर एनिमल्स के टेल्स होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी एनिमल्स है सबके टेल्स होगी, नो। ओके, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव टेल्स। टेल यानी कि पूंछ। दे यूज देयर टेल इन मेनी वेज। ओके, वो अपनी पूंछ को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में यूज कर सकते हैं। डॉग्स वैग देयर टेल टू शो दैट दे आर हैप्पी, यानी कि वैग मीन्स टू मूव। सो व्हेन डॉग्स आर हैप्पी व्हाट दे डू, दे मूव देयर टेल्स, है ना। जब वो खुश होते हैं डॉग्स तो वो अपनी पूंछ हिलाते हैं। Cats generally wag their tails to show anger. Some monkeys use their tail to hold on to branches of trees. और कुछ जो monkeys होते हैं वो अपने आप को पेड़ पे होल्ड करने के लिए, बैठे रहने के लिए भी उस टेल का यूज करते हैं। ओके, ऑल द एनिमल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक साउंड, और सारे ही एनिमल्स जो होते हैं उनके खुद के अलग अलग साउंड्स हैं, है ना। जैसे कि बिल्ली अलग टाइप का साउंड निकालेगी, डॉग अलग टाइप का साउंड निकालेगा, चिड़िया जो होती है वो अलग साउंड निकालेगी, स्नेक जो होता है वो अलग साउंड निकालते हैं ना। हमने जीके में भी पढ़े थे अलग टाइप के साउंड्स जो है वो एनिमल्स के। ओके, फॉर एग्जाम्पल डॉग बार्क, लायन रोर, स्नेक हिज, बियर ग्रोल एंड वॉल्स हाउल। ओके, now time to answer this we had done. Okay, true or false? First, animals do not require food. False. Animals को जरूरत होती है food की। Okay, so it is false. Animals use different type of organs to breathe. Animals जो होते हैं उनके different type के organs होते हैं breathe करने के लिए, है ना। तो it is true. सही है ये, है ना। ऑल एनिमल्स हैव टेल्स, सारे एनिमल्स की टेल होती है? नहीं। अभी हमने क्या पढ़ा था, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, यानी कि ज्यादातर एनिमल्स की टेल होती है, बट सारों की टेल्स हो ये जरूरी नहीं है। ओके, देन टाइप्स ऑफ एनिमल्स। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक, टाइप्स ऑफ एनिमल। द वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स आर। अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं और क्या उनकी क्लासिफिकेशन होती है, क्या उनकी कैटेगरी होती है। ओके, सो बिग एंड स्मॉल एनिमल्स। आज हम पढ़ेंगे बिग एंड स्मॉल। बिग यानी कि बड़े एनिमल्स एंड स्मॉल मीन्स छोटे एनिमल्स। ओके, द लार्जेस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड इज ब्लू व्हेल। अब डू यू नो, मीन्स ये एक जीके का क्वेश्चन है कि जो लार्जेस्ट एनिमल है इन द वर्ल्ड इज ब्लू व्हेल। तो आपको ये याद रखना है, यू रिमेंबर इट। ओके, दैट द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड इज ब्लू व्हेल। जो ब्लू व्हेल है वो सबसे लार्जेस्ट एनिमल है हमारे वर्ल्ड का। ओके, सो यू रिमेंबर इट। बिग एंड स्मॉल एनिमल्स। देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। हम अर्थ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे टाइप के एनिमल्स हैं, है ना। लार्ज नंबर मीन्स बहुत ज्यादा, अनगिनत, हम गिन भी नहीं सकते इतने एनिमल्स हैं। ओके, दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। उनके साइजेस जो है वो अलग अलग है, कोई छोटे हैं, कोई बहुत छोटे हैं, तो कोई थोड़े बड़े हैं ना। Some animals like elephant, giraffe and whale are big in size. Now these are the big animals. Now these are the big animals. Some animals like elephant, जैसे कि elephant है, giraffe है, whale है, ये क्या है, सबसे big animals. Some animals like mouse, ant and rabbit are big in size. Yes, Suraj, what happened बेटा? सूरज माइक ऑन करो,
सूरज माइक ऑन करो बेटा 1 मिनट। यस मैम। बेटा यू कैन हियर मी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। और आपको स्क्रीन भी सुना दिख रही है? स्क्रीन इज विजिबल ना? यस मैम। ओके ओके। नाउ हु इज हैविंग प्रॉब्लम? कौन है जो मैम मैम कर रहा है इतनी देर से? वेरी बैड बेटा, आप अपना नाम भी नहीं बता रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे ये भी नहीं बता रहे हो और क्लास डिस्टर्ब किए जा रहे हो बार बार। हाँ, नो मैनर्स बेटा। Now see, big and small animals. So as we had explained you, some animals like elephant, giraffe and whale are big in size. Okay, ये जो elephant, giraffe और whale है ये क्या है? Big animals होते हैं. Okay, and some animals like mouse, ant and rabbit are small in size. Okay, यानी कि ये जो mouse है, ant है, rabbit है, ये सारे small size में आते हैं. Okay, हर्ष, if you are having any problem, wait, afterwards let me explain this topic, afterwards I will ask you what happened. Okay, so you can see these are the big animals. ये example है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ही animals हैं जो big है. Okay, these are some examples. Elephant and giraffe, they are big animals. Ant and rabbit, they are small animals. Okay, now domestic and pet animals. Now tell me, you know what is domestic animal? आपको पता है domestic animal क्या होते हैं? Yes, डोमेस्टिक मीन्स पालतू जानवर जिसे हम पाल सकते हैं. द एनिमल्स विच आर केप्ट ऑन फार्म्स और इन अवर हाउसेस फॉर डोमेस्टिक, होते हैं। yes, are called domestic animals. For example, cow, horse and sheep. ये जो cow, horse and sheep है, ये क्या है? ये हम अपने घर में पालतू जानवर है जिन्हें हम अपने फार्म्स पे यानी कि खेतों पे और रखते हैं और इनको हम इनको यूज भी कर सकते हैं. जैसे कि काव है तो हम उससे मिल्क ले सकते हैं, हॉर्स है तो हम हॉर्स राइडिंग भी उस पे कर सकते हैं ना. तो ये सारे क्या है? दे आर द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड दे आर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस. डोमेस्टिक पर्पस यानी कि घरेलू काम जो भी होते हैं हम इनसे कर सकते हैं. दे आर डोमेस्टिक पर्पस एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डोमेस्टिक एनिमल. एंड एग्जांपल्स आर काउ, हॉर्स एंड शीप. ओके, नाउ यू कैन सी गोट, डॉग, काउ, hen, ये सारे क्या है? ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं. अब इनसे हम क्या पर्पस लेते हैं इनसे? डोमेस्टिक यानी कि हम इसमें घर में क्या काम कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोट जो है वो हमें दूध देती है ना. डॉग है वो क्या करता है? हमारे घर की रखवाली भी करता है ना. हम बाहर बांधते हैं, कोई आता है तो हमें वो क्या करता है? बचाता है. चोर वगैरह कोई भी आ जाता है तो ये क्या करते हैं? गार्ड करते हैं ना. तो इसलिए हम मैम वो रखते हैं. देन काउ, काउ क्या करती है? दूध देती है हमें, है ना. hen हमें एग्स देती है ना. तो ये सारी ये जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स है ये हमें कुछ ना कुछ देते हैं, इसीलिए हम इन्हें अपने फार्म हाउस पे, हाउस पे हम रखते हैं. यस यस बेटा, व्हाट हैपेंड? मैम hen को पाल सकता है? बिल्कुल पाल सकते हैं. आपको एग देगी ना hen. पालते हैं ना लोग घरों में, है ना. हाँ, now see, we keep some animals like dogs, cats, parrots and fish at home. They are called pet animals, है ना. अब जैसे डॉग है वो क्या करता है? रखवाली करता है ना. या कोई कोई लोग उसे शौक से भी पालते हैं, है ना. जैसे बहुत सारे लोगों को पेट्स का शौक होता है तो वो अपने घर पे रख लेते हैं. जैसे कि हम फिश का एक्वेरियम अपने घर में रखते हैं ना. तो दे आर पेट एनिमल्स. वो हमें मैम मुझको भी पसंद है. आप अगर फिश रखोगे तो फिश आपको कुछ भी नहीं देगी. जैसे कि अगर आप hen रखते हो तो आपको एग देगी, काव रखोगे तो मिल्क देगी, है ना. लेकिन ये पैरेट, कैट और फिश ये आपको देगी कुछ नहीं. लेकिन जैसे हमें शौक होता है तो हमको क्या होता है? फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं, वो इंसानों के साथ में रहते हैं और रह सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें रख सकते हैं. तो दैट्स व्हाई दे आर पेट एनिमल्स. ये फर्क है पेट एनिमल में और डोमेस्टिक एनिमल में. समझ में आ गया? डोमेस्टिक एनिमल्स को हम फार्म्स पे रख सकते हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता हो. पेट्स एनिमल हम जो है वो शौक से रखते हैं, है ना. नाउ वाइल्ड एनिमल्स. अब हम देखेंगे कि वाइल्ड एनिमल्स कौन है और कैसे होते हैं. सम एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, वॉल्फ एंड बियर लिव इन फॉरेस्ट. अब ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं क्या इनको हम घर पे रख सकते हैं? कौन बताएगा मुझे? ऋत्विक आप बताओ. वाइल्ड एनिमल्स को हम घर पे रख सकते हैं? माइक और वीडियो ऑन करो ऋत्विक. नहीं रख सकते. क्यों नहीं रख सकते हैं बताओ मुझे. मैम बिकॉज वो बहुत खतरनाक होते हैं और हमको खा भी सकते हैं. यस, क्योंकि वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होते हैं, है ना. वो जैसे कि और वो कैट मीट और खाते हैं. हाँ, जैसे कि कैट होते हैं, पैरेट्स होते हैं, ये थोड़े दिनों में फ्रेंडली हो जाते हैं. काऊ होती है ना, वो ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और वो थोड़े दिनों में फ्रेंडली होके हमारे साथ रहते हैं और हमारे जैसे
मतलब जो भी हम करते हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, इनको अगर हमें पालना भी है तो हमें, जैसे कि कोई कोई लोग टाइगर या लॉयन को रखते भी हैं, तो उसके लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। मैम, तो हम इन्हें नहीं रख सकते, इसलिए हम इन्हें कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स। यस, मैम, यस। टाइगर को पाल सकते हैं? किसको? नहीं, हम नहीं पाल सकते बेटा, दे आर वाइल्ड एनिमल्स ना, वी कांट कीप देम। ओके, हम नहीं पाल सकते उन्हें। सम एनिमल्स, और वो बंधे हुए रहते भी नहीं है, उन्हें अपने जंगल में ही अच्छा लगता है। दे लिव इन फॉरेस्ट एंड दे लाइक टू लिव देयर ओनली। ओके, सो वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं? सम एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, वॉल्फ एंड बियर लिव इन फॉरेस्ट, और ये जंगल में ही रहते हैं और ये जंगल में ही खुश रहते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। द होम ऑफ सच एनिमल इज इन फॉरेस्ट, और ये जो सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनका घर कहाँ होता है? इन द फॉरेस्ट ओनली। ओके, ये जंगल में ही रहते हैं और इनका घर जंगल ही होता है। आपको सिर्फ इतना ही पता रखना है कि वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं। लायन, टाइगर, आप पिक्चर्स में देख सकते हो, वॉल्फ, मैम, बियर। लायन, टाइगर, वुल्फ, हाँ, these are the wild animals. Okay, now aquatic animals. अब हम पढ़ेंगे एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं। जो भी एक्वा मतलब क्या होता है? पानी। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हो। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? एक्वेटिक मीन्स, एक्वा मीन्स वाटर होता है। ओके, सो एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो एनिमल्स वाटर में रहते हो। अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स लिव इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। यानी कि वेराइटी, वेराइटी यानी कि बहुत ज्यादा टाइप के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फिश ही वाटर में रहती है, नहीं। ऑक्टोबस, फिश, वेल्स, सी हॉर्स, और ऐसे बहुत ज्यादा जानवर है, वॉलरस, छोटे छोटे बहुत अलग अलग टाइप के जानवर है, क्रोकोडाइल है, मैम, फ्रॉग्स हैं, हाँ, जेलीफिश, जेलीफिश हैं। तो ऐसे बहुत सारे, बहुत मैम, ज्यादा टाइप के seahorse है, वैरायटी। तो जब बहुत ज्यादा हो जाते तो हम कहेंगे अ वैरायटी ऑफ jellyfish, एनिमल्स लिव इन वाटर। ओके, सो ये जो बहुत ज्यादा टाइप के एनिमल्स है जो कि वाटर में रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्वेटिक एनिमल्स। इनको हम क्या कहेंगे? एक्वेटिक एनिमल कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल फिश एंड ऑक्टोपस, यानी कि कुछ एग्जाम्पल दिए, क्योंकि इतने सारे तो एनिमल्स के हम नाम नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं, तो सिर्फ ये दो एग्जाम्पल दिए, फिश एंड octopus. Okay, and they are aquatic animals. So students, still here all of you understand? जिसको नहीं समझ में आया हैंड रेस करेंगे, जिसको नहीं समझ में आया वो हैंड रेस करेंगे, और जिसको समझ में आ गया मुझे थम्स अप का साइन देंगे। गिव मी थम्स अप साइन बेटा। इफ यू अंडरस्टैंड, थम्स अप का साइन। हर्ष क्या पूछ रहे थे? आप पूछो बेटा। हर्ष, व्हाट हैपेंड? यू आस्क्ड मी, व्हाट यू वांट टू आस्क मी? हर्ष, हर्ष जाखड़, टेल मी व्हाट हैपेंड? You raised your hand that time? मैम, कुछ नहीं। कुछ नहीं, ओके। सो नाउ अभी हमने क्या पढ़ा है? चैप्टर नंबर 9 हमने पढ़ा है, एनिमल्स। इसमें हमने क्या पढ़े हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स हमने पढ़ लिए थे। ओके, ये ट्रू फॉल्स मैंने आपको करवा दिया है, आप बुक में कर लेना। देन वी स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ एनिमल। टाइप्स ऑफ एनिमल में हमने कौन से एनिमल्स पढ़े हैं? बिग एंड स्मॉल, डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स, एंड देन वाइल्ड एनिमल्स, एंड देन एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, इतने टाइप के एनिमल्स होते हैं। आपको एक बार फिर से मेरे साथ साथ बोलना है, मैं बोल रही हूँ। ओके, टाइप्स ऑफ एनिमल्स में आप सब बोलोगे, माइक ऑफ ही रखना है ना, माइक ऑन मत करना, मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है। बिग एंड स्मॉल एनिमल्स, so example of big and small animals are elephant and giraffe, big animals, ant and rabbit, small animals. Then domestic and pet, domestic जिसको हम घर में अपने फार्म हाउस पे और रख सकते हैं। ओके, और पेट एनिमल्स भी वही जो जिन्हें हम घर में रख सकते हैं, दे आर गोट, डॉग, काउ, hen. Okay, then we keep animals like dog, cat, parrots and fish at home, they are called pet animals. Okay, then we studied about wild animals. Yes, so wild animals are lion, tiger, wolf, bear. Okay, लायन, टाइगर, वुल्फ, yes. Then aquatic animals, अब मुझे कौन बताएगा? हर्ष आप बताओ, what is aquatic animal? हर्ष, tell me what is aquatic animal? नहीं नहीं, आई एम नॉट आस्किंग एग्जाम्पल, मुझे बताओ एक्वेटिक एनिमल कौन होते हैं? जो पानी में रहते हैं। यस, जो एनिमल्स स्विम करते हैं, जो तैरते हैं, जो पानी में रहते हैं, दे आर एक्वेटिक एनिमल। आपको ये पता होना चाहिए। ओके,
ऑल ऑफ यू। और जो ब्रीथ करते हैं पानी में। हाँ, वो वाटर में भी ब्रीथ करते हैं बेटा, इसीलिए उनके अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं ना, ब्रीदिंग ऑर्गन्स, इसीलिए अलग अलग। अभी देखो मैंने आपको पढ़ाया था ना, यहाँ पे हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, इसमें आप ध्यान से देख सकते हो। एनिमल्स यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। यहाँ पे क्यों ऐसे बोला गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन? क्योंकि देखो, जो एयर में रहेंगे उन वो अलग टाइप से ब्रीथ करेंगे, जो लैंड पे एनिमल्स रहेंगे वो अलग टाइप से ब्रीथ करेंगे और उनके ऑर्गन्स भी अलग होंगे, और जो वाटर में ब्रीथ करेंगे उनके भी ऑर्गन्स जो अलग होंगे। So that's why they are using different type of organ to breathe. Okay. So now all of you understand clear? कराएंगे मैम एक्वेटिक एनिमल्स के नीचे। हाँ, ये करो, अभी करो, मैं करवा रही हूँ। Now find and encircle 6 animals in the word maze given below which you see in and around your house. यानी कि अभी हमारे जो आसपास हम देख सकते हैं ऐसे एनिमल्स के इसमें नाम है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने कर लिए, आप मार्क कर लेंगे। ओके, मार्क करो। रैबिट, RABBIT, रैबिट, मार्क इट। देन DOG, डॉग। Then monkey, MONKEY, monkey. Then mouse, MOUSE, mouse. COW, cow, and CAT, cat. Okay? Do it now. यहाँ पे एंट नहीं। हाँ, एंड कर सकते हो बेटा। यहाँ पे आप 1 मिनट, आप यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे कितने बोल रहे हैं हमें करने? 6 है ना, तो मैंने 6 कर दिए ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, आप एंड भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड भी कर सकते हो। हमें 6 करने बोला था, इसलिए मैंने सिर्फ 6 किए। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट बेटा। यस मैम यहाँ पे एंट भी लिखना है ना? हाँ बेटा, कर लो अब एंड, लेकिन यहाँ पे 6 ही पूछे हैं ना, सिर्फ 6 एनिमल्स पूछे हैं यहाँ पे, तो मैंने 6 किए हैं। और अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू गिव मी थम्स अप साइन इफ यू अंडरस्टैंड टिल हियर, एंड यू विल डू दिस ऑल्सो, टाइम टू आंसर। ओके, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हर एक के लिए हमें एक एग्जाम्पल देना है, यानी कि एक नाम लिखना है। ओके, लाइक फर्स्ट वन, वाइल्ड एनिमल। ओके, वाइल्ड एनिमल, तो आप यहाँ पे लिखोगे लायन, राइट डाउन नाउ ओनली, लायन। देन एक्वेटिक एनिमल, यानी कि जो पानी में रहते हैं एनिमल। मैम कुछ और भी लिख सकते हैं? हाँ, कुछ और भी लिख सकते हो, पर जो मैंने लिखवा है पहले ये लिखो। पहले आप जो मैंने लिखवा है वो लिखोगे, ठीक है। देन एक्वेटिक एनिमल, फिश। ओके, देन डोमेस्टिक एनिमल, काव, एंड बिग एनिमल, एलिफेंट। पहले आप ये लिख लो, फिर आपको जो लिखना है वो ब्रैकेट में डाल के आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, यस, व्हाट हैपेंड? मैम, यस, मैम ब्लू व्हेल एलिफेंट से भी बड़ी होती है। कौन बेटा? ब्लू व्हेल। हाँ, हो सकती है, इसीलिए तो दिया है ना यहाँ पे, हमने अभी देखा है ना, बिगेस्ट एनिमल, द लार्जेस्ट, सॉरी ये लार्जेस्ट है। ओके, हाँ, दिस इज द लार्जेस्ट एनिमल बेटा। ओके, मैम ये ब्लू व्हेल क्या होती है? ये ब्लू वेल होती है बेटा, एक टाइप की। जो वेल आपने नहीं सुनी है, जो समुद्र में रहती है, जो ओशियंस में रहती है, बहुत ज्यादा बिग। तो मैम ये एलिफेंट से भी बड़ी है। हाँ, एलिफेंट से भी बड़ी है हाँ, क्या? हो सकती है, हो वो सकती है। समुद्र, वो कभी कभार सबसे बड़ी है। उसका ब्लू व्हेल इसलिए नाम रखा गया है ताकि वो है ना अपना शिकार कर सके पानी में। ब्लू व्हेल मैम 1 लाख और 80 हजार। ये ठीक है, ऑल ऑफ यू डन टिल हियर? यस, मैम आपने All of you scroll done? कर दिया इसलिए मैं लिख नहीं पा रही। ओके, चलो चलो, आई एम गिविंग टाइम, राइट डाउन फास्ट, राइट डाउन विदाउट मेकिंग नॉइज एंड विदाउट मेकिंग योर वर्ड। मैम बेटा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, डू इट फास्ट। अभी क्लास आपकी जो है ना वो बंद हो जाएगी 5 मिनट में, डू इट फास्ट। मैम
थम्स अप का Okay. साइन देना है। यस, अगर आपको सब समझ में आ गया और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको थम्स अप का साइन देना है। ओके, और मुझे बताओ सारे बच्चों ने चैट में प्रेजेंट लिख दिया है? जिसने नहीं लिखा है Yes, अभी ma'am. लिखो। 20 स्टूडेंट्स आर देयर, मुझे 20 प्रेजेंट चाहिए। यस, गिव मी। कहाँ पे पढ़ा है मैम ने? कहाँ पे पढ़ा है? डू इट बेटा फास्ट। डन, सबने लिखा है? यस, यस मैम। ओके। और सब सारे बच्चों ने लिख दिया है बेटा, प्रेजेंट लिख दिया है। अदरवाइज आप अगर प्रेजेंट नहीं लिखोगे तो फिर आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो अभी नहीं लिखा है तो आप लिख दो। 5 मिनट्स आर स्टिल मोर। ओके, डू इट। मैम मैंने भी प्रेजेंट लिख लिया। ओके, वेरी गुड बेटा। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड्स एंड आस्क मी। टिल हियर, यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है टाइम टू आंसर तक। अगर यहाँ तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी। एंड इफ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग प्लीज गिव मी थम्स अप साइन। अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझे थम्स अप का साइन दे दो। ओके, मैम आई नो। ओके, ओके, डन बेटा। ये एग्जाम्पल्स जो यहाँ पे आप अपने मन से भी लिख सकते हो, पर ये ध्यान रखना कि आप गलत ना लिख लो, इसीलिए जो मैंने लिखवाए यही लिखो आप। ओके, ठीक है, जो मैंने लिखवाए पहले लिखोगे आप, फिर ब्रैकेट में आप अगर आपको जो अच्छे मतलब जो है वो लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। अदरवाइज दिस वन ओके, इतने भी लिखोगे तो बहुत है। ओके, डन। यस मैम। डन बेटा, ऑल ऑफ यू। सो टिल हियर ऑल ऑफ यू डू दिस वर्क। ओके, हमने क्या क्या कर लिया अभी? हमने इस चैप्टर में ये ट्रू और फॉल्स किए थे, टाइम टू आंसर। ओके, देन हमने ये वाला कर लिया था लेट अस डू 69 पेज पे, एंड देन दिस वन। ओके, सो 9 चैप्टर में यहाँ तक हो गया है बेटा। मैंने आपको कल मैं रिवीजन के लिए दूंगी, कुछ वर्क मैंने डाला है आपके लिए, जो कल का जो वीडियो है ना उसके लिए ईवीएस का जो वर्क आएगा आप लोगों को बेटा अपने वर्क चेक करने अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। ओके, जो भी वीडियो का जिस दिन भी टर्न होता है उस दिन आप वीडियोस चेक करोगे। मैं रिवीजन डाल रही हूँ क्योंकि मैं ईवीएस जो है वो ऑनलाइन पढ़ाऊंगी, और जो हमारा वीडियो आएगा उस दिन मैंने आपके लिए रिवीजन टेस्ट डाली है, तो वो आप रफ कॉपी में कर लोगे। ठीक है, एंड विदाउट चीटिंग नहीं करनी है। ओके, ओनली 2 चैप्टर फॉर योर PA2। तो मैंने कल के लिए चैप्टर नंबर 12 जो है वर्क अराउंड अस, उसके कुछ क्वेश्चंस डाले, वो आप अपनी रफ कॉपी में कर लोगे, है ना। पहले आप लर्न करोगे, चैप्टर को रीडिंग करोगे, और उसके बाद में उसको अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करोगे ऑनेस्टली, सिंसियरली। ओके, सो दैट आपकी ये चीजें हो जाए। ठीक है, और जो भी मैं वर्क भेजती हूँ वो आपको कंप्लीट कर लेना है बेटा। ठीक है, इनकम्प्लीट वर्क मत रखना। ईवीएस का सबका वर्क कंप्लीट है ना? यस और नो? यस मैम। सबका कंप्लीट है ना? यस। यस मैम। फिर आप मुझे लास्ट एग्जाम के टाइम में मत कहना कि मैम हमारा इनकम्प्लीट है। ओके, मैम मेरा डन है। ओके, ओके, मैम मेरा भी डन है। ऑल ऑफ यू डन? यहाँ तक सबने कर लिया है कंप्लीट अपना वर्क? यस मैम। ओके, तो मैं आगे का टॉपिक करवा दूं, ये वाला ईटिंग हैबिट्स। मैम हाँ, यस। Who's there? Tell me what happened. Yes. Yes. Okay. So now eating habits of animals. देखो, अभी हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है? पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, देन हमने टाइप ऑफ एनिमल्स पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे इसमें ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ओके, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं इनकी हैबिट्स क्या है, किस टाइप का खाना खाते हैं। ओके, पलक यू रीड, पलक रजवानी यू रीड बेटा, आप ये रीड करो यहाँ से ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स से।
पलक माइक ऑन, बाकी सारे बच्चे माइक ऑफ करेंगे। यशवी माइक ऑफ करो। पलक read from here, eating habits of animals. Read. माइक इज ऑफ। Okay. Read पलक। पलक read, पलक रजवानी read बेटा। यस मैम। Read, start reading. यस मैम। हाँ रीड करो बेटा, टाइम ओवर हो जाएगा। ओनली 3 minutes वी आर हैविंग नाउ। 3 minutes के बाद में क्लास अपने आप ओवर हो जाएगी। ओके रीड। यस मैम। different Animals animals eat eat different kinds of food. different kinds of food. Squirrels, Squirrels, rats and rats and rabbits yes have have lion long लंबे shape hard. and ma'am I will read. Ma'am afterwards I read. Okay. Squirrels, rats and rabbits. Palak read what happened? Okay, Ritvik, you read now. Ritvik, you read beta. Ma'am from again squirrels. Squirrels. From squirrels you will read. Yes. Squirrels, Squirrels, rat, rat and rabbits have long, sharp and flat, flat front teeth. Front यानी कि front आगे वाले teeth. teeth. Yes. To grown seeds and fruit. Yes. To gnaw giraffe. seeds and fruits. Okay. Okay. A giraffe has a long neck